Good afternoon, guys. I hope you can hear me. Hi, Anirban. Um, Anirban, I'm not checking the homework right now. It's another team that checks the homework. They'll create a report and then they'll send it to me. So then I'll let you know. Hi, Ria. Good afternoon, Teeth. Hi, Tashvi. Hi, Puneet, Atharv, Tanisha, Neil, Muskan. Hi. Hi, Dhruv. We see 30 attendees are here. So let's start quickly. जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं तो अच्छा रहेगा. Hi, Jaden Jimmy. Hi, Vasudha. Hi, Bhavika. Night 3. Yes, we are done with 4. Of course. और क्या बचा उसमें? खत्म हो गया. रिकॉर्डिंग देख लो वापस से एक बार रिवाइज कर लो. लेवल 1 लेवल 2 खत्म कर लो. फोर्स का ही कंटिन्यूएशन है वर्क एनर्जी. फोर्स नहीं आएगा तो वर्क एनर्जी नहीं आएगा. आदित्य मुंद्रा saying hi sir, homework completed. Very good. जिसने होमवर्क कंप्लीट किया वेरी गुड. रायन हाय. रिया गुप्ता is saying some problem with the upload. गूगल ड्राइव में पहले अपलोड करो, वहां से वहां अपलोड करो. वसुधा said होमवर्क भेज दिया. वेरी गुड. Dhruv Shah said, I had doubt in some practice questions. Okay, we'll take the doubts today. अभी ले लेते हैं doubts. Afnan, good afternoon. Atharv Mohite, that's great. If you completed homework. Arav, hi. Puneet also completed homework. That's good. ठीक है. ध्रुव शाह को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. हाँ पूछो ध्रुव. Yeah, sure. What is your doubt? Hi. Good evening. So I had some doubts, and so 9.1.16, the answer which I was getting was minus 12.5, but in the solution it was given 12.5. Okay. ठीक है. Let me open that first. Then. Yeah. 9.1.16. 1.16. Let me. Yeah. 9.1.16. Yeah. Yeah. A car is moving with velocity blah. If driver of the car want to change its velocity from dash to dash in 2 minutes, what is the force applied by the brake on the tires? हाँ ठीक है ना. तो मतलब it's asking for the force applied by the brake. उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ेगा. By the brake तो उसके डायरेक्शन में लगा रहा हो. So that's okay. Even if you've written minus, it's okay. Plus is also okay. Okay. So both of them are right, positive, negative. Yeah. Yeah. Okay. Then I doubt in 9.1.17. हाँ बोलो. Sir, I did not get this question. Like, find the change in momentum. फोर्स दिया, टाइम दिया. फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? In momentum. नहीं. Momentum is mass into velocity. This is force into time. Everyone tell me, what is force into time? Good. Atharv Mohte gave correct answer. Impulse. Impulse होता है. Impulse is equal to क्या होता है? Change in momentum.
तो यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, मतलब 50 इंटू 1/10, मतलब 5 kg मीटर पर सेकेंड होएगा चेंज. So what's the proper definition of impulse? इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. जितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रहा है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इम्पल्स आएगा. इम्पल्स ऑल्सो मीन्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, mv माइनस एमयू अपॉन टी होता है. तो फोर्स हाँ. इंटू टाइम हो जाएगा mv माइनस एमयू. वही पूछा है इसने. अच्छा. Okay. And I doubt in 9.2.20. 9.2.20. Hmm. Velocity of a speeding motorcycle is doubled. Solve the change in its momentum. यार ये तो कल किसी उतना आसान तो है. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? Mass into velocity. वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो मोमेंटम क्या होगा? Mass into. मास इंटू वेलोसिटी है. अभी एम वी है, और उसको m इंटू 2 भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2mv हो जाएगा. मतलब ट्वाइस हो गया ना मोमेंटम. Oh yeah. फिर क्या यार, इतने आसान सवाल में क्या डाउट? So नॉट done. Yeah, डन done. हो गया. ओके. 9.2.5 किसी ने वापस पूछा. From a rifle of mass blah, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of blah. Calculate the initial recoil of the rifle. जब खड़ा हुआ है तो टोटल मोमेंटम जीरो है, तो फायर करने के बाद भी टोटल मोमेंटम जीरो होगा. तो अगर बुलेट ऐसे जा रही है, या बुलेट ऐसे जा रही है तो गन इस तरफ जाएगी उल्टा, है ना. तो बस दोनों के तरफ का मोमेंटम इक्वल रहेगा, तभी जब माइनस होंगे वो तो जीरो हो जाएगा. तो वैसे ही निकालना है. हो गया. ओके. Anyone else with any other doubt? Raise hand if you have doubt. बोलो पुनीत. Hello. Yeah, tell me. Yeah, so I had doubted 9.1.20, the second part. Second part. Which law is applicable? An inflated balloon flies off in the air if its knot is untied. हाँ, तो क्या होगा इसमें? बताओ. Like, जो I ऊपर did क्यों not चला गया? understand the question. बलून ऐसे ही भरा हुआ हाँ. रहता है, उसको ऐसे छोड़ते हैं तो उड़ जाता है ना ऊपर. So third अगर वो law, ऊपर उड़ रहा है मतलब कोई उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ. हाँ. कौन फोर्स लगा रहा है? जो गैस उसमें वो छोड़ रहा है. क्योंकि वो पुश कर रहा है, फूला हुआ है तो पुश कर रहा है तो एयर बाहर निकल रही है. तो क्योंकि ये एयर पे फोर्स लगा रहा है, एयर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है. Okay. And Anything else? yes, sir. 9.1.25. 9.1 पॉइंट 25. वो तो है ही नहीं. 9.1.23 तक ही है. Okay. 24 क्या is सवाल a है? graph and 25 also another question. अब आई डोंट हैव इट ना, मेरे सामने वाले में नहीं है. Okay, then. Okay. Then 9.2.8. No, 8 not, sorry. 9.2.11. ये velocity was a time graph of a ball हाँ. of mass 50 gram rolling on a concrete floor is shown. Calculate the acceleration and frictional force of the flow on the ball. Yeah. Velocity time. Sir, ठीक है. so I got 0.5. I got 0.5 Newton, but negative. So where will that negative sign go? In the solutions, it is not there. फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव नहीं होगा. मतलब
क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो Okay. चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट एल्स? 9.2.13. Water sprinkler used for grass plants begin to rotate soon as water is supplied. Explain the principle on which it works. क्यों घूमता है वो? Water supplied. क्यों घूमने लगता है? Force लगता है. तो कैसे स्प्रिंकलर कैसे रखता है? ऐसे है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो पानी आगे की तरफ जा रहा है, उसको कौन पुश कर रहा है? ये स्प्रिंकलर पुश कर रहा है, तो पानी स्प्रिंकलर को पीछे पुश करेगा, इसलिए स्प्रिंकलर ऐसे घूमने लगता है. तो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण. Okay. Okay. What else? Done. Done? Okay. Anyone else with any other doubt? Raise hand. Okay, Neki, unmuting you. Sir, Cool. 9.2.15. 1-5. Yeah. Which of the following cases net force acting is zero? Identify the Sir, direction net- of force. Net force तो तब होता है when there is two forces acting on one object ना. Yeah. But So यहाँ पे the car drives around a circular track at a constant speed. तो अगर circular track में है, तो accelerated motion है constant speed में कि नहीं है? accelerated है ना? तो अगर accelerated है मतलब force भी लग रहा होगा, तभी. जहाँ पे acceleration है वहाँ पे force है ना? तो यहाँ पे तो Yeah. force है. A person pushes a door to hold it shut. Hold it shut. एक ही जगह दबा के रखा हुआ उसने, तो वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वो दरवाजा नहीं मूव कर रहा. but sir net force तो तब होता है तब जब दो forces act करते हैं ना. हाँ, तो लग रहे होंगे ना उसमें दो फोर्स, तभी तो. नेट फोर्स तभी भी होता है जब एक्सीलरेशन जीरो. समझ रहे हो? क्योंकि हमें नहीं पता उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं. हमने दरवाजा पकड़ के रखा है, लेकिन क्यों पकड़ के रखा है? अगर और कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, अभी अगर तुम दरवाजे पे देखो, तुमने दरवाजा ऐसे दबा के रखा हुआ, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल. Yeah. तो दरवाजे के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं कि एक ही फोर्स लग रहा है? दो. कौन कौन से? मेरा and wall का. एग्जैक्टली. तो वही हो रहा है ना, अगर इफ यू कीपिंग द डोर शट, तो इसका मतलब उधर से भी एक फोर्स लग रहा हो, तुम भी इस तरफ से दबा रहे हो, टोटल फोर्स जीरो हुआ तभी वो दरवाजा मूव नहीं कर रहा थी. अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं होता तो दरवाजा का एक्सीलरेशन होता कहीं पे, है ना? Okay. पर्सन पूछे द डोर टू ओके. बॉल रोलिंग अक्रॉस अ ग्रासी फील्ड स्लोली कम्स टू अ स्टॉप. अगर यहाँ पे स्टॉप पे आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन डिसेलरेट हो रहा है वो, है ना? कुछ फोर्स लग रहा है उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में. So ठीक है. direction of force क्या होगा? ऑपोजिट टू द मोशन. जितना मोशन, जिस तरफ मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तभी वो डिसेलरेट हुआ ना. और फर्स्ट का? फर्स्ट का डायरेक्शन ऑफ फोर्स की एक्सीलरेशन किधर है? रेडियल है, रेडियस के डायरेक्शन में, तो इसलिए एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में. नेट फोर्स. Okay. I got confused and वो आंसर भी wrong दिया था. ओके, आ गया समझ में? Yeah. ओके. और कोई? 9.2.17 का third part. When I solve change in momentum divide by time upon 2, तो फिर उसके आगे क्या करना है? If the time taken to bring a ball to rest from a certain velocity v, but if the time taken to bring a ball to rest from a certain velocity v is reduced to half, then what will be the changes in the values of? Okay, so basically क्या बोल रहा है कि v से लेके जीरो तक लेके आया, v वेलोसिटी था, Yeah.
ये जीरो वेलोसिटी हुआ, उसको t टाइम लगा पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में हाफ हो गया, मतलब t/2 टाइम लगा। तो चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, वो तो चेंज नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम नहीं, था I'm mv, asking about फाइनल the third वेलोसिटी, one. हाँ एक एक करके जाते हैं, mv था और दूसरा Okay. जीरो हो गया। ओके, चेंज ऑफ मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा बिकॉज पहले mv था दूसरे में जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि वहां पे टाइम आ रहा है, तो mv माइनस जीरो अपॉन टी था पहले, यहाँ पे mv माइनस जीरो अपॉन t/2 हो गया, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्वाइस हो जाएगा उसका, 2 टाइम्स। Okay. आया समझ में? Yeah. ओके, एनीवन एल्स? डू यू हैव एनी अदर डाउट? 8.2.20. Sorry, 8 नहीं, 9.2.20. The velocity of speeding motorcycle is doubled. ये क्यों, क्या प्रॉब्लम, बोलो ना। What will be the change in its momentum? क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? M in momentum is mv, so it will be m into 2v ना? या तो और आगे? तो m into 2 भी क्या हो गया? 2 mv हो गया, पहले mv था बाद में 2 mv हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? ट्वाइस, डबल हो गया वो। Okay, that's it ना? 100% चेंज। हाँ, और कोई डाउट नहीं है। ओके, और किसी को डाउट है तो भाई हाथ उठा दो। हाँ, रक्षिता बोरा हाथ उठा रही थी और वंश वर्मा हाथ उठा रहा था। क्या हुआ? उठाओ हाथ। ओके, रक्षिता बोरा आस्क मी। Hello, sir. हाय। Yeah, sir, I had a doubt in level 2's last question. बोलो कौन सा नंबर? या 25th question. Yeah, this one. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? टेल मी व्हाट इज द डाउट? Sir, I didn't get how is the equation formed for like MA, MB, and then like I saw in the solution, I got confused. So, Suppose two balls A and B of masses MA and MB are moving in the same direction along the straight line at different velocities UA and UB respectively. Let UA be greater than UB. Okay. So that the ball A hits ball B at the back. Okay. Suppose balls A and B after the collision move in the same direction velocity VA and VB for this collision between the balls. Okay. So conservation of momentum लगेगा क्या इसमें? हाँ, क्योंकि दो collide हो रहा है, right? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, बाहर से कोई हाँ. फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास इंटू वेलोसिटी ma इंटू यूए, क्योंकि सेम Yeah. डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो यूए भी सेम है, यूबी भी सेम है, वीए भी सेम है, वीबी भी, सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो ma यूए प्लस mb यूबी, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। हाँ. फिर टकरा गए दोनों, टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा? ma-va प्लस mb-vb, Okay. और दोनों इक्वल होंगे, सो ma-ua प्लस mb-ub इक्वल्स टू ma-va प्लस mb-vb। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाद में ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। Yes. ओके, ऑलराइट, हु इज नेक्स्ट? आस्क मी। एनीवन एल्स? वंश वर्मा, बोलो वंश वर्मा, क्या डाउट है, पूछो। Sir, I was having problems in remembering the Newton laws. Can you explain them? I wasn't able to understand how F equals to ma and that all momentum and all. वीडियो देखा? हेलो Okay. हेलो, Yes. वीडियो देखा क्या तुमने? Yes. Hello, sir. रिकॉर्डिंग, डिड यू सी द रिकॉर्डिंग? I saw, but still I didn't understand. I was having some problems like how momentum, how mass into velocity, how. एक एक करके सवाल पूछो। तो हाउ इज मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी? Yes.
that's the name that we have given to that quantity. When you multiply mass and velocity, we have given a name to that quantity called momentum. Oh, okay. So if a body is moving with a constant velocity, उसका momentum constant रहेगा कि change होगा? Constant. क्योंकि velocity constant है और mass भी constant है. Velocity अगर change हो रही है तो उसका momentum Okay. change होगा कि same रहेगा? It will change. अगर velocity change हो रही है तो वो uniform motion है कि accelerated motion है? Accelerated. तो जहाँ पे accelerated motion है वहाँ पे momentum change हो रहा है. Yes. ठीक है, तो वहां से आया rate of change of momentum is force, क्योंकि पता चला कि force is directly proportional to rate of change of momentum. एक्सपेरिमेंट से बार बार एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन ने, तो उसको पता चला that rate of change of momentum मतलब जब momentum change, जितने टाइम में चेंज हुआ momentum उतने टाइम से डिवाइड कर दो. सो mv माइनस mu by t इज इक्वल टू फोर्स. तो m कॉमन लोगे तो हो जाएगा m v माइनस u by t इक्वल टू फोर्स, और v माइनस u by t है एक्सेलरेशन, तो m a इज इक्वल टू फोर्स. तो यार अगर तुमको फोर्स ही Okay. समझ में नहीं आया तो फिर कैसे सॉल्व कैसे करोगे सवाल? मेरा रिकॉर्डिंग ध्यान से देखो और उसके बाद कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक द होल क्लास टाइम टू एक्सप्लेन व्हाट आई एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लास ना. 2 क्लास हो गए इसके ऊपर. ओके, क्यों तुम Yes. क्लास में नहीं थे क्या पिछली बारी? Sir, I WhatsApped you that because of some network connection, I missed the rest of whole class. I wasn't able to log in back. हाँ तो रिकॉर्डिंग देखो ना, Yeah. रिकॉर्डिंग ध्यान से देखो, उसके बाद कोई Yes. स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछो. पूरा चैप्टर समझाने मत बोलो Okay. वापस. ओके. और कौन है? राघव टंडन. राघव टंडन क्या डाउट है? ना क्वेश्चन बोलो ना, और डाउट है तो हाथ उठाओ ना. तो तुम हाथ उठा रहे हो, इधर लिख रहे हो सर डाउट. क्या डाउट है भाई? क्वेश्चन बोलो, कौन सा डाउट? राघव टंडन क्या डाउट है? अनम्यूट कर दिया मैंने तुमको, पूछो. सर डाउट क्लियर हो गया. ओके ठीक है, हो गया, सबको समझ में आ गया. ऑल राइट, हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद हम करेंगे कहूट. ठीक है, ओके. चलो ओके. तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये वाला, क्योंकि फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है. तो पहले हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होता है ना. एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी मोशन चैप्टर में. फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है किसी बॉडी में, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको पता चल गया. अब फोर्स लग रहा है तो एक और चीज होती है, अब फोर्स हम लगाते हैं तो क्या चीज स्पेंड होती है? एनर्जी, है ना. तो फोर्स लगाने पे एनर्जी स्पेंड हो रही है, या किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये बॉडी है, ठीक है, ये देखो ये बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो एनर्जी आगे ना भाग रहा है. देखो मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया फिर भी भाग रही है, एनर्जी है इसके पास, है ना. तो फोर्स से एनर्जी का कुछ तो रिलेशन है, और तो उस रिलेशन को आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन. वर्क डन ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी, on a particular object is defined as force into the displacement in the direction of force. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में F फोर्स लगा रहा हूँ, और ये S डिस्प्लेसमेंट करता है यहाँ से यहाँ तक. जब मैं फोर्स लगा रहा था तब छोड़ दिया, उसके बाद गया, वो नहीं. जब फोर्स मैंने लगाया, जब तक फोर्स में लगा रहा था तब तक वो जितना डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन. वर्क, ठीक है, वर्क डन. तो जितना किसी बॉडी पे वर्क डन होगा उतना उसके पास एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, जितना किसी बॉडी पे वर्क डन होगा उतना उसके पास एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, तो वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स, या उसको और कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन और एस होता है मीटर, है ना. तो न्यूटन मीटर हो गया. या दूसरा होता है जूल्स. एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल्स, क्योंकि जितना वर्क करोगे किसी बॉडी पे उतना उसके पास एनर्जी आ जाएगा.
या अगर बॉडी के पास ऑलरेडी एनर्जी है तो वो किसी चीज पे वर्क करके वो एनर्जी को स्पेंड कर सकता है। ठीक है, आया समझ में? ओके, व्हाट इज 1 जूल? So 1 joule of work is when 1 Newton of force is applied on a body till it travels 1 meter of distance. ठीक है, ये देखो वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस ना, तो 1 होएगा वर्क जब एफ इक्वल्स टू 1, एस इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 1 मीटर डिस्टेंस। ये देखो ये लिखा है ना सर, 1 न्यूटन while moving it through a distance of 1 मीटर। ठीक है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन मीटर को हमने लिखा है जूल्स, है ना, जूल्स। आ गया? किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ। एनीबडी हैज डाउट टिल नाउ रेज योर हैंड। ठीक है, सबको आ गया समझ में, गुड। चलो क्विकली राइट द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। इधर लिखो फटाफट, फॉर्मूला लिखो वर्क डन का। ओके गुड, वसुधा तिवारी, नेकी लखानी, पुनीत, इलीना, शक्ति। शक्ति तो सवाल पूछ रहा है यार, फालतू के सवाल मत पूछा करो यार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हॉर्स पावर? अभी तक हॉर्स पावर बताया नहीं मैं, तो आगे क्यों पूछ रहे हो यार? जो बताया वो लिखो ना। वर्क डन का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ वो बताओ, आगे की चीज आगे पढ़ाऊंगा, अभी क्यों पढ़ाऊंगा? मेक सेंस? ओके, अपनांश करेक्ट, आरव वेलानी करेक्ट, मानसी राठी करेक्ट, आदित्य मुंद्रा करेक्ट, अतर मोहिते करेक्ट, हिमनीश करेक्ट, रायन करेक्ट, तीर्थ करेक्ट, रक्षिता, नेत्री, ध्रुव, रणवीर, अभिषेक, एवरीबॉडी करेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? 2 यूनिट है, दोनों लिखो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वसुधा गलत है, जूल्स अपॉन न्यूटन मीटर नहीं है, जूल्स एंड न्यूटन मीटर है, जूल्स अपॉन न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, सो ओके, जूल्स एंड न्यूटन मीटर। करेक्ट, ठीक है, सबका सही आंसर, वेरी गुड। फोर्स का फॉर्मूला क्या? फोर्स का फॉर्मूला लिखो। एम ए, राइट, गुड 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 गुड। न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूटन लिखा है वसुधा, न्यूटन की स्पेलिंग है NEWTON, NEU नहीं है। एंड मैंने फॉर्मूला पूछा है, यूनिट नहीं पूछा। ओके, तो F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अब देखो, एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, क्विकली बताना। ठीक है, चलिए क्विकली नहीं, कॉपी में करके बताओ। ये ऐसे है, ठीक है, सपोज ये u, इसके पास u वेलोसिटी है, अभी अगली 0 वेलोसिटी है। ठीक है, इसका u 0 है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया s, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए? s डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, इसका मास है m, इसका are you guys able to hear me now? Can you hear now? Okay, good. ठीक है, okay. Question was, if I'm applying F force on a body that has mass m, तो उस पे एक्सेलरेशन कितना होगा?
F force on a body that has mass m, तो acceleration कितना होगा? F upon m. Good. F upon m. Yeah, wait, I don't know why people are not able to see. Yeah, wait, I'll bring the screen also, don't worry, give me a second. You can't see me क्योंकि कुछ हो गया है. Anyway, अभी तो सही लिखा तुम लोगों ने, देखते हैं थोड़ी देर की मैं इसको कुछ करेंगे. So yes, F upon m हो गया है ना, so that will be the acceleration F upon m. Now suppose ये body u 0 था, उसका initial velocity 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इस बॉडी का, बताओ. फाइनल वेलोसिटी कितना होगा इस बॉडी का अगर एक्सेलरेशन f अपॉन m है और u से चालू हुआ, तो s डिस्टेंस के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, बताओ. समझ में आ रहा है? नहीं, देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन है f अपॉन m, u इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट s है, तो हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, है ना. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ठीक है, तो 2 a की जगह लिख देंगे f अपॉन m, है ना, 2 f अपॉन m s. ठीक है, तो ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया v स्क्वायर. आ रहा है समझ में? अब अगर इस बॉडी पे वर्क कितना हुआ, जितना वर्क हुआ उतना एनर्जी आ जाएगा ना, तो इस बॉडी पे वर्क कितना हुआ, f इंटू एस. f इंटू एस, एफ इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए इंटू एस, और a की वैल्यू क्या, f अपॉन m. तो ऐसा कुछ करके निकालो, f इंटू एस कितना हो जाएगा एक्चुअली. हाँ, एक आइडिया, v स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 2as, है ना. आ रहा है समझ में? चलो आगे दिखाएंगे, थोड़ी देर में मैं दिखाता हूँ. ठीक है, ओके. Concepts, work is done when work is done on an object only when following two conditions are satisfied. The force should act on an object. जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वर्क डन नहीं होगा. दूसरा, दी ऑब्जेक्ट शुड मूव. अगर मूवमेंट नहीं होगा, एस नहीं होएगा, तो वर्क डन नहीं होगा. तुम दीवार के ऊपर फोर्स लगा के खड़े रहोगे लेकिन उसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि दीवार ने मूव नहीं किया. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एस भी हो और एस भी हो. ठीक है, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना. तो ये थीटा है, तो इसमें हो जाता है एफ डी कॉस थीटा. इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन एस एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है और एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उनके बीच का एंगल है थीटा. तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया एफ डी कॉस थीटा. ठीक है, एफ डी कॉस थीटा. जैसे हमने टैन थीटा पढ़ा था वैसे कॉस थीटा होता है. कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था. टैन थीटा है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा. ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया. तो कॉस थीटा की वैल्यूज मैं तुमको बता देता हूँ, लिख लो. कॉस 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर ये 0 एंगल होगा तो ये पूरा पूरा 1 हो जाता है. लिख लो कॉस 0 इक्वल टू 1. मैं दिखा दूं वैल्यूज, दिखा देता हूँ तुमको, उसको नोट कर लेना.
दिख रहा है कॉस की वैल्यूज? तो कॉस 0 की वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, इसको लिख सकते हो 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू है 0। तो बस दो ही चीजें याद कर लो, बस cos 0 = 1 और cos 90 = 0। ठीक है, cos 90 = 0 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट, नोट कर लो इसको फटाफट। नोट कर लोगे तो हाथ उठा देना। ओके गुड, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है। अभिषेक त्रिवेदी, आदित्य राणे, अफनान शेख, अमेय, आरुषि, सब नोट करो फटाफट। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा 0 1/2 1/√2, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, all right. Aditya Mundra is asking, sir, are you going to call someone with you? Yes, I will. I will. In some time, I'll call people. ठीक है, with me on the video. ठीक है, एक्चुअली चलो ठीक है, अभी बुलाता हूँ मैं अटेंडीज। सबके हाथ नीचे, किसको आना मेरे साथ कॉल पे बोलो। हाथ उठाओ, जिसको मेरे साथ कॉल पे आना है, वीडियो कॉल पे, वो हाथ उठाओ। उठाओ। क्या वो आदित्य मुंद्रा, इतना पूछ रहे तो तुम हाथ ही नहीं उठा रहे हो। किस किस को आना है मेरे साथ कॉल पे? ओके, आदित्य मुंद्रा हाथ उठाओ ना। ओके, मेक पैनलिस्ट, रायन गांधी को बनाया मैंने पैनलिस्ट, आदित्य मुंद्रा को बनाया, पुनीत सदे को तो पिछली बार भी बुलाया था। और कोई आओ, और किसको बनाया पैनलिस्ट? उठाओ हाथ। हाय रायन, रायन कांट हियर यू मैन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है रायन गांधी। आदित्य, कैन यू हियर मी? ओह, आई कांट हियर पीपल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, से समथिंग गाइस। Oh, wait. I have not, oh, wait. I have not unmuted you. Wait. Unmute. Yes. Come in, Ryan Gandhi. Hello, Yes. hello, sir. Okay, तुम्हारा बहुत ही कट रही आवाज। Okay, आदित्य मुंद्रा, come in. Hi. नहीं, put on your microphone ना। Hello, sir. आदित्य। Yeah, hi. Cool, ठीक है। अब मेरे पास एक सवाल है आदित्य मुंद्रा, cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0. तो एक बात बताओ, ये है और ये है, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया, तो अभी फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? रायन गांधी बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? रायन गांधी, Yes, sir. कितना, क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? कितना एंगल है? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एंगल कितना हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 90. भाई फोर्स ये है, ये, और डिस्प्लेसमेंट भी ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 0. तो 90 क्यों बोला? 90 तो तब होता जब ये ऐसे मूव कर रहा होता और फोर्स ऐसे लग रहा होता ना, ये 90 होता। बट ये दोनों साथ साथ हैं तो फिर 0 डिग्री हुआ ना। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. 1। तो FD cos थीटा में cos 0 को डालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ FD आ जाएगा, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन अगर 90 डिग्री पे हो रहा है तो देखो, जब कोई चीज सर्कुलर घूमती है तो फोर्स कहाँ लग रहा है? रेडियस पे लग रहा है फोर्स। जैसे हम घुमा रहे हैं ना किसी चीज को, तो फोर्स रेडियस पे लग रहा है, और मोशन हो रहा है इधर 90 डिग्री पे हो रहा है ना। तो वहां पे वर्क डन हो जाएगा कितना? FD cos थीटा ना। तो आदित्य मुंद्रा कितना वर्क डन होएगा सर्कुलर मोशन में? थीटा कितना है? Theta is so actually I didn't understand what you said. सो आई एम सेइंग कि कोई चीज को तुम ऐसे घुमाएंगे हम, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं तो घूम रही है ऐसे, लेकिन हमने उसको रस्सी से बांध के रखा हुआ है ना। तो कोई चीज ऐसे घूम रही है तो फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन उसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। आ रहा है समझ में? हाँ. देखो ये है, अगर पेन इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे, तो मैं फोर्स तो इधर ही लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ ना इसको। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होता है सर्कुलर मोशन में, है ना। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और ये डायरेक्शन 90 डिग्रीज है। तो cos 90 0 होता है, तो FD cos 90 0 हो गया। तो इसलिए सर्कुलर मोशन में Okay. वर्क डन बाय द स्ट्रिंग 0 होता है, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग 0 होता है, ठीक है। Okay, sir. आ गया? ओके, गुड। लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन गुड आंसर। पुनीत, रणवीर, नैत्री, ओके, ठीक है, तो लोगों ने सही आंसर दिया। तो FD cos थीटा हो गया वर्क का फॉर्मूला। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क कब होएगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है। 0 एंगल से लेके 90 एंगल तक के बीच में होगा, तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। देखो, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन वुड बी पॉजिटिव, ओके। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब तुम फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हो, जो मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल ये अगर ऑलरेडी चल रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे चल रहा है, समझ रहे, ऐसे आगे चल रहा है, लेकिन मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो द वर्क डन बाय दिस इज नेगेटिव। आया? सो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द वर्क डन वुड बी नेगेटिव, ठीक है। व्हेन द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फोर्स, तो नेगेटिव हो गया। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स always acts in the direction opposite to that of displacement, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन होगा हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, ओके। जीरो वर्क कब होगा? जब 90 डिग्रीज बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अपने सिर पे रखता हूँ और फिर मैं आगे चलने लगता हूँ ऐसे, है ना, तो मैं सिर पे रखा तो मैं इसके ऊपर फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ ऐसे सीधा, तो उनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन विल बी 0, ठीक है। आ गया? ओके। रायन गांधी, कोई डाउट? No, sir. सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होगा रायन गांधी? 0. ठीक है, ओके। अब अगर किसी बॉडी पे हम वर्क करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे हम वर्क करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है, तो वो एनर्जी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क।
तो जिसके पास एनर्जी होगा वही वर्क कर पाएगा, ठीक है। which does work is said to possess energy. Work and energy are equivalent quantities. Unit of energy is same as that of work, and work scalar quantity की vector quantity रायन गांधी, वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? Sir, I think scalar. हाँ, तो वर्क टर्म स्केलर है, इसलिए एनर्जी भी स्केलर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। नोट कर लो उसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। नोट इट डाउन। ओके, किसमें नापेंगे? यूनिट क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का? आदित्य मुंद्रा और माइक, हाँ जूल्स होगा, बिकॉज वो भी एनर्जी है ना, तो जूल्स होगा, ठीक है। तो एक काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, ये चल रही है, तो उसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एक ये हो गई। दूसरा एक और टाइप की एनर्जी होती है बड़ी मस्त। देखो, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और मैं फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। मेरे को ऊपर ले जाने के लिए उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना उसका वेट है उतना। उसका वेट कितना? mg। आखिरी वेट तुम लोग को पता नहीं क्या होता है ना। एक बात बताओ, ये बॉडी है रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है? पता है क्या? कैसे पता चलेगा? इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा ये, है ना, गिर गया। इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो गिरेगा ना ये। कितने एक्सीलरेशन से गिरेगा नीचे रायन गांधी? माइनस 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 जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना। आदित्य मुंद्रा, कितने एक्सीलरेशन से गिरेगा अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे? गाइस एवरीबॉडी टेल मी, कितने एक्सीलरेशन से? जी से, जी से, ग्रेविटी से गिरेगा ना, जी से। हमने मोशन में पढ़ा था जी, है ना, जी एक्सीलरेशन से गिर रहा है ऐसे, है ना। मैंने छोड़ा इसको तो जी एक्सीलरेशन से गिरा। क्यों गिर रहा है जी एक्सीलरेशन से? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। और अगर जी एक्सीलरेशन से अट्रैक्ट कर रहा है तो इस पे फोर्स कितना लगा? इसका मास इनटू एक्सीलरेशन, तो mg फोर्स लगा है इसके ऊपर, है ना। आ रहा है समझ में रायन गांधी? तो अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो अगर हमको इसको रोक के रखना है तो ऊपर की तरफ हमको mg फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इसको अगर मैंने अभी रोक के रखा है तो इसका मतलब मैं ऊपर की तरफ mg फोर्स लगा रहा हूँ, तभी ये रोक के रखा है ना। अब ये mg फोर्स लगा के मैं इसको ऊपर लेके गया h हाइट तक, mg फोर्स लगा के मैं उसको h हाइट तक लेके गया, तो मैंने कितना वर्क किया बताओ? हु कैन टेल मी? अगर मैं mg फोर्स लगाया और उसको h हाइट तक लेके गया तो कितना वर्क डन किया मैंने? पुनीत सदेव करेक्ट आंसर बताओ तुम लोग। नेकी लखानी करेक्ट आंसर, गुड। वंश वर्मा करेक्ट आंसर, गुड। बताओ रायन गांधी, क्या वर्क डन का फॉर्मूला क्या है रायन गांधी? हाँ, आदित्य मुंद्रा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू सर याद आया। बोलो रायन गांधी। फोर्स सर इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स कितना है, कितना फोर्स लगा रहा हूं मैं? कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं अभी तो बताया था।
mg फोर्स लगा रहा हूँ ना, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लगा रहा है। अगर मैं ऊपर नहीं लगाऊंगा तो गिर जाएगा, तो इसलिए इसको मैं पकड़ के रखने के लिए मेरे को ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाना पड़ रहा है। Okay. ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ mg फोर्स लगा रहा हूँ और h डिस्टेंस लेके गया, मैं उसको h हाइट तक लेके गया, तो कितना वर्क डन होगा? Hmm. स्नेहल mg रॉन्ग, upon आदित्य height. रॉन्ग, नेकी लॉन्ग। mg अपॉन क्यों होगा यार? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोला ना, तो mg अपॉन हाइट क्यों होगा? फॉर्मूले में ही तो लगाना है ना तुमको, मतलब इट इज सिंपल राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, तो mg इंटू h, mg h। ठीक है, तो जिन लोगों के मैंने बोले थे वो सही आंसर हो गया। पॉइंट है कितना कि मैंने इनके ऊपर कितना फोर्स लगाया, mg लगाया और h हाइट तक गया, तो उसके ऊपर वर्क डन हो गया mgh। तो जब यहाँ पे आ जाएगी बॉडी, तो उसके पास वर्क डन हमने किया था mgh, तो वो उसके पास एनर्जी की तरह स्टोर हो जाती है। ठीक है, इट गेट स्टोर्ड एज एनर्जी हियर, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अब इसके पास पोटेंशियल है टू कन्वर्ट। तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो थोड़ी देर के बाद ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेलोसिटी वाली एनर्जी को क्या कहते हैं रायन गांधी? वो एनर्जी, Accelerated अभी मैंने कौन सी एनर्जी के बारे में बताया था रायन गांधी? potential kinetic energy. हाँ, तो It काइनेटिक will एनर्जी change वाज into बिकॉज ऑफ वेलोसिटी, और बिकॉज ऑफ हाइट जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट के कारण जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड kinetic energy. गुड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? K equal to half mv square. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh. वेरी गुड। ठीक है, और यूनिट क्या होता है दोनों का? जूल्स होता है। ठीक है, तो mgh ये लिखा है ना इधर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि भाई किसी भी बॉडी की एनर्जी चेंज करने के लिए हमको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, सिंपल। तो अगर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी उसके पास हाफ mu स्क्वायर थी, बाद में उसके पास वेलोसिटी हो गई भी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो उसके ऊपर कितना वर्क किया? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, उतना वर्क हमने उसके ऊपर किया। ठीक है, सिंपल। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये तो तुमने पढ़ा ही हुआ है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा काइनेटिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, बस हो गया खत्म ये चैप्टर भी। तो एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, अब ये जो ये वाला मेजर पार्ट है ये हम क्लास में करेंगे जब हो जाएगा। अच्छा, एक अब इसमें एक और चीज है, पावर। पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। तो जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, उसमें लिखा होता है 25 वॉट का बल्ब है, 50 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। उसका मतलब है कि वो 100 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी यूज करता है। ओके, 100 जूल्स पर सेकेंड। तो वॉट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है, WATT। ठीक है, WATT इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। ये दिखा देता हूं मैं, इसको भी नोट कर लो। पावर, ये देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और एनर्जी इज यूज्ड पर यूनिट टाइम, और एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, नोट कर लो। हो गया?
यूनिट होता है जूल्स पर सेकेंड, क्योंकि जूल हो गया वर्क का, सेकेंड हो गया टाइम का, तो जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट। आ गया? ओके। एवरेज पावर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब ये एक मेजर पार्ट है जो एग्जाम में तुम्हारे आ सकता है, ये वाला कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको हम किस में नापते हैं, तो ये है। तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट का अगर कोई डिवाइस होगा उसको 1 घंटे के लिए हम ऑन करेंगे तो वो कितना एनर्जी यूज करेगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट आवर, 1 kilowatt hour is the unit of energy, not power, is the unit of energy, ठीक है। रायन गांधी, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ व्हाट? Energy. अरे भाई किलोवाट, किलोवाट। वॉट किसका यूनिट है, वॉट? Commercial अभी मैं क्या power. पढ़ाया? हाँ बताओ रायन गांधी, अभी क्या पढ़ाया मैंने? पावर पढ़ाया ना, Commercial पावर। unit. ये Yeah. पावर पढ़ाया, पावर, पावर पढ़ाया, हाँ इसका यूनिट है वॉट, हाँ ठीक है। तो ये जो लिखा है ये वॉट, ये किसका यूनिट है? power. ठीक है। किलोवाट का मतलब क्या हुआ, वॉट इंटू 1000, 1000 वॉट को हम किलोवाट बोलेंगे, क्योंकि किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, है ना। तो किलोवाट मतलब 1000 वॉट, ठीक है। तो ये किलोवाट किसका यूनिट है? Thou आदित्य मुंद्रा बताओ, आदित्य मुंद्रा। Power. Power. हाँ, किलोवाट पावर का यूनिट है, ठीक है। अब किलोवाट को, पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? देखो, पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? work done. गुड, वर्क डन मिलेगा। ये देखो, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो मतलब पावर इनटू टाइम विल बी वर्क डन, या एनर्जी, है ना। यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ऑल्सो। तो इसीलिए जब 1 किलो वॉट को हम आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 1 किलोवाट आवर मिलता है, जो कि एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, जूल्स एनर्जी का यूनिट है ना। तो ये आएगा एग्जाम में, पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल्स। तो उसको डिराइव कैसे करोगे? किलोवाट मतलब 1000 वॉट, 1 आवर इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, क्योंकि एसआई यूनिट सेकेंड्स होता है टाइम का, इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 3600 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। ओके हाँ सर. ओके, ठीक है। तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, हो गया, ठीक है। खत्म, चैप्टर खत्म हो गया यार। अब थोड़े से मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चंस करो। ओके, चलो रायन गांधी फटाफट। चलो वर्क का फॉर्मूला बोलो, वर्क का, एंड एवरीवन राइट इट हियर ऑन दिस थिंग। वर्क का फॉर्मूला बोलो, वर्क का। Force into displacement. गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। Half into m into v square. हाफ एम बी स्क्वायर, इंटू इंटू बोलने की जरूरत नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। mgh. गुड। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी का किसी भी पॉइंट पे इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो कितना हो जाएगा ये? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। पावर का फॉर्मूला बोलो रायन गांधी। रायन गांधी,
P equals to W upon T. करो। वर्क का यूनिट बताओ। Joules. Joules. करेक्ट। एनर्जी का यूनिट, Joules. पावर का यूनिट, Kilowatt. वाट, Watt. WAT, What? ठीक है। अब किलोवाट आवर किसका यूनिट है? Commercial power you. नहीं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ, अभी मैंने बताया ना कि किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, तुमने ही तो बोला था पावर इनटू टाइम एनर्जी। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, पावर का यूनिट नहीं है। किलोवाट पावर का यूनिट है, बट किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 11.1.1। आरव विलानी करेक्ट आंसर, वसुधा करेक्ट आंसर, अथर्व करेक्ट आंसर, वंश करेक्ट आंसर, नेत्री करेक्ट आंसर, तीर्थ करेक्ट आंसर, पुनीत, रणवीर, ध्रुव, हिमनेश, अनिर्बान, मानसी, शक्ति, लीना, अफनान करेक्ट आंसर। क्या हो गया भाई रायन गांधी? गिवन क्या है गिवन? 7 Newton. 4 Newton. फोर्स और Direction 8 meter. Displacement Direct- 8 meter. और क्या पूछा है? Displacement पूछा गया work. वर्क का फॉर्मूला क्या है? 56 Newton meter. 56 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को और क्या लिख सकते हैं? joules. वेरी गुड, मचा दिया। गुड रायन गांधी, पहला सवाल बन गया। चलो 11.1.2 सवाल करो। अनिर्बान करेक्ट आंसर बट नो यूनिट। तीर्थ केतान करेक्ट आंसर विद यूनिट। वसुधा तिवारी, शिवेश, वंश, अथर्व यूनिट सही से डालो। मानसी, एलिना, पुनीत करेक्ट आंसर। आरुषि रस्तोगी रॉन्ग यूनिट, रॉन्ग यूनिट। तारा विलानी करेक्ट, रणवीर सिंह करेक्ट, रक्षिता बोरा रॉन्ग यूनिट, हिमनीश करेक्ट, नेकी लखानी करेक्ट, रिया गुप्ता करेक्ट। ठीक है, क्या हुआ रायन गांधी? गिवन क्या है? 1000 joules. क्या है? Energy. और टाइम 10 seconds. पूछा गया है। Power. फॉर्मूला क्या है 100 पावर का? T W upon T. डालोगे तो क्या आएगा? 100 joule. 100 watt. वॉट, WATT। Watt. ठीक है, वेरी गुड रायन गांधी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एट व्हाट एंगल शुड द डिस्प्लेसमेंट बी टू गेट द मैक्सिमम वर्क डन बाय अ फोर्स? क्या आंसर होगा इसका? नहीं नीचे और होगा ना। एक मिनट, ये चलो 11.1.3 फटाफट।
Yes, Puneet, what is the doubt? Yeah, so I did not understand mechanical energy formula. Mechanical energy is combination of kinetic plus potential. तो कभी भी किसी बॉडी के पास टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो दो भागों में होती है, काइनेटिक में, एक पोटेंशियल में. तो दोनों को ऐड कर दोगे तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी. फॉर एग्जांपल अभी ये गिराया मैंने इसको, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये गिर रहा है तो रास्ते में इसके पास काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, क्योंकि यहाँ तक उसका हाइट है ना. आ रहा है समझ में? हाँ, so it will be half mv square mgh नहीं, हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh. plus mgh. Okay. Yes. And yeah, so what will be represented by W? Watt or work done? W as a unit is watt, but W as a given quantity is work done. Okay. Okay. Shakti Vagal, what is your doubt? Nothing, sir. गलती से हम हाथ ऊपर आ गए. ओके, ठीक है, आ गया सबको समझ में. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. चलो, ये वाला सवाल हो गया. बताओ रायन गांधी. कंप्यूट द स्पीड ऑफ 2 kg बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल्स. गिवन क्या है? हाँ, मास गिवन है ना 2 kg. हेलो, एक मिनट. ओह सॉरी, वेट, तुम लोग म्यूट हो गए, रुक जाओ, अनम्यूट कर देता हूँ. अनम्यूट. हाँ, बोलो रायन. अपने आप को म्यूट. हाँ, 2 के काइनेटिक एनर्जी दिया है 4 जूल. और 4 मास जूल 2 kg. पूछा क्या है? क्या पूछा है? स्पीड. वी पूछा है, वी है ना. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो क्या है? हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? 4 जूल्स. हाफ हाँ. इंटू, और ये क्या है? हाफ इंटू, और मास कितना है? 2. तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 4. तो हाफ और 2 तो कट गया, तो वी स्क्वायर हाँ. इक्वल टू 4. तो वी कितना होगा? 4. अरे वी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वी कितना होगा? 2. 2 होगा. तो बस 2 हाँ. हो गई इसकी स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना. अफनान शेख हाँ. करेक्ट आंसर. अफनान शेख करेक्ट आंसर. अथर्व करेक्ट आंसर. हिमनिश, वंश वर्मा, रिया, नेकी. ठीक है, ये लोग का करेक्ट है. बहुत सारे लोगों ने गलत दिया है. तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड होगी. ठीक है, ओके. पता नहीं, कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया. भाई 8 पूछा ही नहीं है कुछ. ठीक है, आया रायन गांधी? ओके. हाँ सर. 11.1.4 करो. एवरीबॉडी डू दिस. Sir, it would be 2100 joules. रायन गांधी इज ऑन फायर. गुड, मचा रहा है रायन गांधी. और किस किस का सही आंसर आया मैं बता देता हूँ. कितना आंसर है रायन? 2100 ना. तो अफनान शेख, पुनीत, यस सर. आदित्य, आरव इलानी. न्यूटन मीटर मत लिखो, अब जूल्स लिखो, जूल्स. वंश वर्मा रॉन्ग आंसर. शक्ति वगल 9.34 कहाँ से आ गया मेरे भाई? क्या यार, कैसे? अच्छा, उसको
मेरे को लगता है इसने उसको डिवाइड कर दिया 140/15 डिवाइड क्यों करोगे भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना ओके मानती राठी ये वो सब ठीक है ओके तो 2100 जूल्स इसका आंसर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अ मास ऑफ 10 kg is at a point A on a table it is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal what is the work done on the object by the gravitational force explain your answer ध्यान से सोच के बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना वर्क डन होगा So I didn't understand the question. वापस पढ़ो सोचो क्या लिखा है समझो 10 kg बात में और कितना Afnan Sheikh, I've unmuted you. Tell me what you think is the answer. Afnan Sheikh. माइक नहीं क्या अफनान शेख के पास अब यार ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है रायन गांधी डाउनवर्ड ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड से ऐसे है ना और इसमें क्या लिखा है इट इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हॉरिजॉन्टली ऐसे हाँ सर तो जो मोशन हुआ उसका इधर हुआ और फोर्स इधर है तो उनका एंगल कितना हो गया 0 डिग्री 0 डिग्री एंगल 90 डिग्री है 90 कॉस degree. 90 जीरो होगा बाद में क्योंकि फोर्स इधर है और बॉडी इधर मूव कर रही है ना हाँ सर उनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री तो उनका जो वर्क डन होगा वो होगा 0 बिकॉज एफ Zero. डी कॉस थीटा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा हाँ उसका कॉस 90 है ना ओके हाँ सर चलो ये करो 11.1.6 एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी दोनों का सेम मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा दोनों का मोमेंटम सेम है उसको गिवन ले लो पी है पी ठीक है पी है उसका एक्चुअली एक काम करो मोमेंटम मास और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप निकालो मोमेंटम मास और काइनेटिक एनर्जी पी एम के के बीच का रिलेशन निकाल के मेरे को बताओ देखते हैं कौन निकाल पाता है चलो ये बोनस क्वेश्चन है आज का पी एम और के बीच का रिलेशन बताओ मैथमेटिकल Sir, रिलेशन P क्या? P is momentum M is mass kinetic energy के ठीक है P M के के बीच का रिलेशन बताओ कॉपी में करके बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। ऐसा ऐसा कुछ करो momentum m Sir, I किसी ने think आंसर नहीं दिया अभी तक सबका गलत है हाँ I बोलो think heavy object has the larger kinetic energy. वो तो ठीक है यार पहले मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ ना पी एम और के बीच का रिलेशनशिप बताओ
हाँ, स्नेहल कश्यप करेक्ट आंसर, फाइनली किसी ने दिया मेरे को करेक्ट आंसर, गुड। बट कैसे, करके बताओ ना। देखो P इक्वल्स टू क्या होता है, एमवी, है ना। हमको हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करते हैं P को स्क्वायर कर देते हैं, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। हाँ सर। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, लेकिन हमको सिर्फ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो एक एम को इधर ले आते हैं, तो P स्क्वायर बाई एम इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। हाँ P स्क्वायर बाई एम इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, है ना। अब हमको हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P स्क्वायर हाफ ऑफ P स्क्वायर बाई एम मतलब हो गया P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। हाँ नोट कर लो सर। उसको, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। अब इसमें पूछा फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, तो P स्क्वायर दोनों का तो सेम ही है मोमेंटम अपॉन 2m, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जो हेवी ऑब्जेक्ट है उसका कम काइनेटिक एनर्जी होगा, जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो बेसिकली P स्क्वायर बाई 2m इज व्हाट आई वांटेड यू गाइस टू टेल, ठीक है। तो आज काउट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं बचा है, लेकिन अगली क्लास में हम सिर्फ काउट करेंगे, फोर्थ चैप्टर का काउट, फिर वर्क पावर एनर्जी का काउट, ऐसे काउट ही काउट करते रहेंगे कल, ठीक है। और डू यू वांट मी टू गिव यू एज अ चैलेंज एट होम और डू यू वांट टू डू इट हियर, व्हाट डू यू वांट? क्या सर? काउट। ओके पुनीत, कम इन, आई विल क्लियर योर डाउट। उसको समझ में नहीं आया P स्क्वायर बाय 2m। पुनीत, Hello. या क्या नहीं समझ में आया, बोलो। Yeah, sir. P is equal to M into V. हम्म, Yeah. So like I understood how you got P is equal to mv square, half हाँ mv square. नहीं, P स्क्वायर इक्वल्स But टू m, हाँ P स्क्वायर बाय 2m इक्वल्स टू ke, but वो नहीं sir, समझ में where आया। did 2m come from? ओके, Yeah. P स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर V स्क्वायर, Yeah. ठीक है ना। P स्क्वायर इक्वल्स टू m Yes. स्क्वायर V स्क्वायर। अब हमको तो सिर्फ एक m चाहिए, दो m स्क्वायर नहीं चाहिए, m स्क्वायर, तो एक m नीचे ले आते हैं, P स्क्वायर बाय m इक्वल्स टू m V स्क्वायर। Oh, I आया, understood that. समझ में आ गया, ओके हाँ sir. ठीक है। अब एवरीबॉडी सेइंग वी शुड डू काउट हियर, ठीक है, फिर कल करेंगे पूरा पूरा काउट, ठीक है। आज से 3-4 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद वील डू काउट टुमारो। और तुम लोग घर में प्रैक्टिस भी कर लेना फोर्स के, और वर्क पावर एनर्जी तो बहुत आसान है, इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट व्हाट एंगल शुड द डिस्प्लेसमेंट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट टू गेट द मैक्सिमम वर्क? मैक्सिमम वर्क कब होएगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 ही हो सकती है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब हम उसका थीटा 0 रखेंगे, ठीक है। अ बॉय इज रनिंग along a circular path with a uniform speed, what is the work done by the boy? तो क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है इसलिए वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। इफ 5 kg मास इज रेज, ये बताओ, ये वाला सवाल 11.1.10, ये वाला करो सब लोग। Sir, 10 हाँ joules
10 joules. Nope. गलत है। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? Sir, I think it would be 98. हाँ 98 राइट, ठीक है 98 करेक्ट है। बिकॉज mgh ना, तो मास इंटू 9.8 इंटू 2, तो 5 to the 10 हो गया, 10 इंटू 9.8 हो गया 98, तो 98 जूल्स। ठीक है mgh। ओके Sure. ओके ठीक है। And 98। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला 11.1.11। sir, 0. क्यों? बोलो। उसने 100 kg के रॉक को पुश किया 200 सेकेंड्स के लिए, पर वो रॉक मूव नहीं हुआ, इसीलिए 0 आएगा। तो 0 क्यों आएगा बोलो ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट Work is 0 है। not done. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 और फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। करेक्ट। ओके ये वाला बताओ 11.1.12। सर 30 जूल्स। यार तुम हमेशा कूद जाते हो यार, कैलकुलेट करो ना। पिछले वाले में भी ऐसे ही किया था, जो 2 नंबर दिख रहे हैं मल्टीप्लाई कर दिया। mgh लगाओ भाई, mgh। हाँ। Sir, I think it would be 290 something. 294. 294 करेक्ट 294 जूल्स। ठीक है 294 जूल्स करेक्ट। ठीक है 13th क्वेश्चन। सर 240 जूल्स। करेक्ट ठीक है। इधर कितने लोगों ने दिया? पुनीत, इलीना, ये 2 लोगों ने दिया बस। मानसी, वंश, अनिर्बान, नील, राघव, Sir, answer would be वसुधा, same. नेकी। सेम नहीं 240 आएगा। स्नेहल ठीक है। Last time was. अफनान, हिमनिश, अथर्व, मौली, तीर्थ, आरव। ठीक है इतने लोगों ने दिया, तो बेसिकली तुम लोग को आ गए चैप्टर समझ में, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अब ये फाइनल क्वेश्चन है, इसको कर लो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इज व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। चलो करो फटाफट, ये आज का फाइनल क्वेश्चन। बताओ
इसका मास कितना होगा बताओ, इसका मास कितना निकल के आया? सर 5, आई थिंक सो 5 मास 5 kg। नहीं, कितना आया इसका मास बताओ पीपल। किसी का सही का आंसर नहीं आ रहा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ किसका सही है। पुनीत का सही है, रणवीर का सही है, बस 2 लोग का सही है। मास कितना है इसका मास? हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है ना, v है 5, तो v स्क्वायर हो गया 25, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इससे निकालो मास की वैल्यू, जल्दी निकालो रायन गांधी। सर 0 आप मास ने मास 0 दिया है तो कॉपी में करो, कॉपी में करो ना। वेलोसिटी दिया 5, काइनेटिक एनर्जी दिया 25, m की वैल्यू निकालनी, निकालो कॉपी में जल्दी जल्दी। मानसी राठी क्या डाउट है? कोई डाउट है? मानसी, डू यू हैव एनी डाउट? No, sir, I was giving the answer. ओके ओके ठीक है। रायन गांधी Sir, क्या I मास आया? think, sir, I think it would be 12.5. मास I think. कैसे निकाला No, मास, no, बोलो ना। no, sir. I by सर mistake. मुझे भी नहीं वही एक मिनट मिला। रायन गांधी को बताने दो, कैसे निकाला मास? सर मैंने 25 इक्वल्स टू हाफ इंटू 0 इंटू 5, तो फिर एक मिनट, जीरो कहाँ से आया? जीरो कहाँ से आया? मास ही तो निकालना तुमको, हाफ इंटू मास इंटू 5 स्क्वायर। 5 क्यों किया? हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वी दिया हुआ है 5। हम्म 50 kg। यार कैसे कर रहे हो तुम, बताओ मेरे को। मतलब सिर्फ वैल्यूज तो डालनी है। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के ई, राइट? हाफ की जगह हाफ लिखा, एम की जगह एम लिख दो, वी की जगह क्या लिखोगे? 5 तो वी 25 स्क्वायर है, तो हाँ, तो वी स्क्वायर की जगह 25 लिखोगे, 25। इक्वल टू के की जगह क्या लिखोगे? 25। हाँ सर। हाफ इंटू एम इंटू 25 इक्वल टू 25, तो उससे एम की वैल्यू क्या आएगी? करो ना, कॉपी में करो ना। क्या? हाफ इंटू हाँ एम इंटू सर 25 इक्वल टू नेटवर्क 25। हाँ जल्दी करो भाई। एनीवे तुम देख लेना कैसे आएगा बाद में। m की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि हाफ इंटू 2 इंटू 25 इक्वल टू 25 होएगा। मास आ गया 2। अब बोला है वेलोसिटी अगर उसका डबल हो जाए मतलब 5 की जगह 10 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, है ना? 25 की जगह 100 हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगा, वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो कितना हो गया? वेलोसिटी 15। हाफ इंटू 2 इंटू 15 स्क्वायर 225, ठीक है? तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलो, आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस वर्क एनर्जी पार्ट चैप्टर। इसका भी लेवल 1 और लेवल 2 तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू करो। कल हम खेलेंगे इसका कहूट, फोर्स का और वर्क एनर्जी पावर का, दोनों का कहूट, ठीक है? रायन गांधी आया समझ में? हाँ, आई थिंक उसका माइक नहीं है। चलो ओके, ऑलराइट गाइस, यप, बाय बाय बाय। 1 मिनट।